All right. Hello, people. How are you all doing? I hope all of you are doing well. My name is Reva Sablok. Welcome to my channel. If you're new here, please subscribe. I'm going to be putting videos here for class 12th students for now and 11th for the humanities background for subjects like political science, geography, history, psychology, and English, and probably sociology as well. So, as your board examinations are approaching, I hope that this channel and the videos that I put on here can be of some help to you to understand certain concepts better, to memorize certain concepts better. A little bit of background about myself. I am a graduate from Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. I studied my honors in psychology from there. I myself come from a humanities background and I'm really passionate about the social sciences. This is something that I really enjoy doing. Up until now, I was teaching students offline, but I just felt, why not touch more um, lives? Why not help more people who need this kind of help? YouTube is a very beautiful medium to make education and knowledge accessible for everybody. So here I am in my effort to help you guys. Please share the videos as much as possible. Share it with your friends, with people who you think might need them. um, Apart from that, as we're just starting this journey, there are going to be some things that you won't like, that you would want me to improve, or some things that you would like and you would want me to continue. So by that I mean your feedback, positive, negative, everything. Just let the feedback come through in the comment section below. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी particular language में ही पढ़ाऊँ, हिंदी हो, English हो, I am comfortable with any language. I am comfortable with any medium of teaching. I'm just here to make this easier for you guys, and I'm just here to interact with as many of you as possible. I just hope that I can convey my love for this subject to you guys as well. I would like to just break those myths and popular notions कि arts तो बहुत ही boring subject है, सिर्फ रट्टा मारना होता है, कुछ करना नहीं होता है, things like that. I just want to break those myths for people. I would want that the subject becomes a bit interesting for you. I would want कि आपको समझ आए कि क्या बैकग्राउंड चल रहा है, कि क्यों हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम उसे और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. So yes, let the feedback come through in the comment section below. If there's anything and everything that you want me to include in the videos, if you want me to teach in a certain way, if you want elaborate explanations for any particular topic, just put that in. If you want कि मैं किसी particular topic पे एक वीडियो अर्जेंट बनाऊं, लाइक ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल बी helping you all with that. So I think that's enough introduction for today. This is going to be a long journey. We're going to be associated with each other for a long while, and I hope that this is a good association, and we will get to know each other better with every subsequent video. For now, let's start with today's agenda. So today we'll be starting with polity. Polity की 12th standard में दो किताबें हैं, one for world politics and one for Indian politics. So we're going to be starting with the Indian politics for now with this video, and we'll be starting with the first chapter, that is the challenges of nation building. So इससे पहले हम चैप्टर शुरू करें, आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई कौन सा नेशन बिल्ड हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या चैलेंजेस की बात हो रही है यहाँ पे. सो जिस नेशन को बिल्ड करने की बात हो रही है वो है हमारा अपना इंडिया, भारत, हिंदुस्तान. All of us know that the Britishers were here for a very long time. They were controlling us, and finally we got independence on, yes, try to fill in the blank. I hope all of you are aware of this, that 15th अगस्त को जो हमें इंडिपेंडेंस मिली है 1947.
उसके बाद हमारा ये नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू होना था. वी वर वांटिंग टू बिल्ड अ नेशन दैट इज डेमोक्रेटिक, that is based on fundamental rights, that is based on fundamental that is based on equality, freedom, secularism. क्योंकि जब ब्रिटिशर्स थे या उससे पहले भी इवन हमारी country as such नहीं थी. It was not India, it was only ये kingdom, ये राज, मुगल राज, Maratha Raj, these were the kind of words and terms that we were familiar with. लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमें एक यूनाइटेड कंट्री, एक नेशन, अपना भारत, इंडिया बनाना था. सो उस नेशन को बिल्ड करने में क्या क्या हमारे चैलेंजेस थे मेन, वो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आपके एमसीक्यूज का जो टेस्ट होने वाला है उसके लिए आप एक चीज़ ये याद करके रख लो. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो पोएम है वो किसकी है? वो है जवाहरलाल नेहरू की. कब बोली थी उन्होंने? 14 अगस्त की रात, या जैसे आप 15 अगस्त की शुरुआत में मिडनाइट पे ही recited this poem, Tryst with Destiny. अगर आपने Student of the Year मूवी देखी होगी तो you must be familiar with this reference. Treasure Hunt में they're looking for the clue और उनको Tryst with Destiny मिलती है, so they immediately know कि ये जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है. So this is a possible one marker that can come. Tryst with Destiny was Jawaharlal Nehru's poem. ठीक है. अब बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. तो है ही है, लेकिन नेशन बिल्ड कैसे करना है. ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. काफी सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो सबका ही बहस हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कोई किसी चीज पे अग्री नहीं कर रहा है, कोई किसी चीज पे अग्री नहीं कर रहा है. ऑफ कोर्स तो हम कोई भी काम करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स तो हमारे सबसे पहले होने शुरू हो जाते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री विद दैट. बट यस, देयर वर अग्रीमेंट्स ऑन टू मेजर डिसीजंस. की सबसे पहला ये कि इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी कंट्री रन होगी वो होगी थ्रू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. देयर वाज अग्रीमेंट दैट द कंट्री वुड बी रन डेमोक्रेटिकली. ठीक है, डेमोक्रेसी अगर आपने 9th स्टैंडर्ड की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की किताब पढ़ी होगी तो उसमें आप याद करो कि डेमोक्रेसी क्या है. दैट पीपल आर गोइंग इन एंड चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. इन रिप्रेजेंटेटिव्स को वो फेयर मैनर में चुन रहे हैं, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है. ठीक है, लोगों की जेन्युइन आवाज सुनी जा रही है. Please excuse me for the background noise if it's coming through till here. This is just very unavoidable. Okay. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? अग्रीमेंट है कि हमारी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी रन डेमोक्रेटिकली. मीन्स दैट द पीपल विल बी electing their representatives in a fair manner, कोई partiality नहीं होगी, and these representatives will be answerable to the people जिन्होंने इनको वोट किया है. दूसरा क्या था कि ये जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होगी, इट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल, नॉट फॉर सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल, या रिच लोगों के लिए, या सिर्फ आदमियों के लिए, या सिर्फ जो लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, उनके लिए. ऐसा नहीं होने वाला है. अप अनटिल नाउ, आज तक ब्रिटिश इंडिया में यही चलता आ रहा था कि जो पुअर लोग थे, डिसएडवांटेज लोग थे, डाउन ट्रॉडन लोग थे, उनकी कोई नहीं सोचता था. लेकिन अब ये चीज़ बदलेगी. हमारी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज. उनका ख्याल रखेगी गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी. सो till now we have to keep in mind two things. Okay, पहली बात तो ये, I would suggest just keep your book in front of you with a highlighter, pen or pencil or a notebook, whatever you prefer, and just keep underlining what I'm trying to say. मेरी कोशिश ये रहेगी by the end of this video हम इसको इतना आसान भाषा में डिस्कस कर लेंगे और इतना लॉजिकली लिंक कर लेंगे हर आर्ग्यूमेंट को, हर सब्सिक्वेंट पेज को, कि आपको अलग से कोई रट्टाफिकेशन की जरूरत ही ना पड़े. ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारा नया नेशन फॉर्म हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड क्या था? पार्टीशन था. पार्टीशन में ऑल ऑफ अस नो 2 कंट्रीज फॉर्म हुई हैं. इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 2.
एक था हमारा जो इंडिया रह गया और दूसरा आ गया पाकिस्तान। तो थोड़ा सा इस यहाँ पे इसी बैकग्राउंड की बात हो रही है कि ये नेशन बिल्डिंग जो प्रोसेस मुश्किल क्यों, स्पेशली मुश्किल इसलिए था क्योंकि ये पार्टीशन के बैकड्रॉप में हमारी कंट्री फॉर्म हुई है। देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट मीन्स इधर से उधर हो जाना। काफ़ी लोग इधर से उधर हो गए, दे वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर हाउसेज। मुसलमानों को बोल दिया गया कि भाई अब ये तुम्हारी कंट्री नहीं है। जो हिंदू वहाँ रहते थे उन्हें बोल दिया गया ये तुम्हारी कंट्री नहीं है, यू हैव टू गो टू हिंदुस्तान। मुसलमान को बोल दिया गया आपको पाकिस्तान जाना है। यू नो, इवन ऑन द इंडिपेंडेंस डे मोस्ट पीपल वर नॉट इवन अवेयर कि हम जहाँ रह रहे हैं, इज इट इंडिया और इज इट पाकिस्तान? सो दैट वाज द काइंड ऑफ कंफ्यूजन एंड frustration, you know, that was prevalent समय के उस समय में। एंड नेचुरली बहुत वायलेंस हमने काफ़ी मूवीज से ही इस बात को अगर रिलेट करोगे थोड़ा बहुत आप देखोगे, आपने काफ़ी सारी मूवीज देखी होंगी जहाँ पे इस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है कि कितना वायलेंट ये पूरा प्रोसेस ऑफ पार्टीशन था। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें समझी हैं। नेशन बिल्डिंग तो हो रही है कि किस बैकड्रॉप में हो रही है, लेकिन एक वायलेंट पार्टीशन के बैकड्रॉप में हो रही है, विच इज़ वाई इट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट। बैकड्रॉप एक ये भी है कि ब्रिटिशर्स ने एक बहुत ही अपने मन में जो आया वैसा वाला राज किया हमारे ऊपर काफ़ी सालों तक। तो इसीलिए अब भैया हमने अपना लेसन लर्न कर लिया है, हमारे लीडर्स ने अब ये डिसाइड कर लिया है, 2 चीज़ों पे अग्रीमेंट कर लिया है कि नंबर 1 एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म होगी एंड नंबर 2 दैट गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ all people and not just the selective rich people. So it will be run for the good of all people, especially the poor and the downtrodden. ठीक है। एंड नंबर 3 ट्विस्ट विद डेस्टिनी किसकी पोएम है, किसने बोली थी? ये आपको अभी तक पता होना चाहिए। दिस इज जवाहरलाल नेहरू। ऑल राइट, नाउ 3 चैलेंजेस है नेशन बिल्डिंग के। द होल premise of this chapter is challenges of nation building, right? तो अगर हम अभी आपको मैं सिर्फ शॉर्ट में बताऊं, in these particular 2 pages they are telling you these 3 challenges in very short। ठीक है। सबसे पहला चैलेंज ये रहा आपका this one। अगेन आई विल से जस्ट कीप योर हाइलाइटर विथ यू। इसके अंदर आपको कुछ रट्टा नहीं मारना है। पहला चैलेंज आप लॉजिकली समझना बिल्कुल, ठीक है। तो पहला चैलेंज क्या है कि आपको एक नेशन फॉर्म करना है। टू द फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज दैट इंडिया वाज फेसिंग वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। यूनाइटेड का मतलब सबको पता है, यूनिटी। अकोमोडेटिव का क्या मतलब है? अकोमोडेट करना, यानी जगह देना, ठीक है, डाइवर्सिटी को जगह देना। तो ये तो हम सभी को पता है। जब से हम फर्स्ट क्लास में आई थिंक हम ये एक लाइन बहुत यूज़ करते हैं अपने एसेज के अंदर, हिंदी का ऐसे हो, इंग्लिश का ऐसे हो, दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यू नो, इट इज़ द होम टू सेवरल कास्ट, रिलीजन, क्लासेस, ट्रेडिशंस, customs, beliefs, languages, food, dance, music, blah blah blah। तो ये तो हमें पता ही है that a lot of different people from different backgrounds stay in India together। तो सबसे पहला हमारा चैलेंज, अब ऐसा क्या होता है ना कि जब इतनी डाइवर्सिटी होती है ना तो डर ये रहता है कि यूनिटी कहाँ से आएगी भाई। सब लोग अपना अपना सोचेंगे, अपने अपने ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस देंगे, तो वो यूनाइटेड फीलिंग लाना सबसे बड़ा और इमीडिएट चैलेंज था। was to shape a nation that was united, एक साथ भी रहें और एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, डिफरेंसेस को जगह भी दें। ऐसा नहीं करें कि भाई नहीं, हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो सुनना पड़ेगा, हमारा रिलीजन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा या हमारे कस्टम्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। सो द मेजर चैलेंज एट दैट टाइम वाज टू बिल्ड अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। ठीक है, एक साथ है सब, लेकिन एक दूसरे के डिफरेंसेस को, डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट भी कर रहे हैं, जगह भी दे रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? सब लोग अपने अपने रिलीजन को अलग कंट्री घोषित करना चाहेंगे या अपने अपने अलग ग्रुप्स बनाना चाहेंगे, विच विल बी वेरी एक फ्रेगमेंटेड सी मेंटालिटी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, पीसेस 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 पीसेस, ऐसा नहीं चाहिए। हमें एक फुल इंडिया फॉर्म करना है इन स्पिरिट। ठीक है, तो इसीलिए यूनिटी बहुत ज़रूरी थी। तो एक दूसरे की डाइवर्सिटी को, एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
नंबर टू, द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। अब हमें पता ही है कि भाई 100-200 साल से ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे, उसके पहले से हमारे अलग अलग राजा लोग चल रहे हैं। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने हिस्ट्री में अभी तक कि मुगल राज, चोलास, चेरास, पंड्यास, मराठास। तो अलग ही अलग किंगडम्स, छोटे छोटे यहाँ वहाँ हैं। कहीं पे किसी लेवल पे डेमोक्रेसी है नहीं है, कोई मतलब एक पैटर्न नहीं था डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी फॉलो करी जा रही है हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं था। सो दिस वाज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस खुद से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म करने का, बिल्ड करने का। सो दिस वाज द सेकंड मेजर चैलेंज। सबसे पहला तो बेसिक चैलेंज है भाई, डेमोक्रेसी छोड़ो, सबसे पहले तो साथ रहना सीखो, तो यूनिटी। तो दैट वाज द फर्स्ट इमीडिएट चैलेंज। यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करो। अब बंदों की तरह तुमने जीना सीख लिया है। सेकंड आता है डेमोक्रेसी। ठीक है, जब हम साथ रह रहे हैं, अब रह ही रहे हैं सब साथ में, सो देयर हैज टू बी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि एक गवर्नमेंट होगी जो सबकी बात सुनेगी, सब फेयरली जाके वो गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई इधर उधर हेरा फेरी नहीं होगी। So this was the as I said, you have to logically link your arguments and the materials that you are reading. ठीक है, do not try to ratify, just try to understand where they're coming from. So your first challenge is unity and accommodative of diversity, and your second challenge now comes एक democratic government को form करना, where you have fundamental rights, where every citizen is respected, सबको जगह दी जा रही है जो वो deserve करते हैं, कोई inequality नहीं है, कोई partiality नहीं है। तो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन है रूल्स को लिख दो, जब रूल्स लिख देंगे तो उनको फॉलो करना, उन्हें समझना, उन्हें कन्वे करना और आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका सेकंड चैलेंज ये रहा कि आपने एक डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म करनी है, एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करनी है, एक ऐसी कंट्री बनानी है जहाँ पे डेमोक्रेसी इन स्पिरिट फॉलो हो रही है। ठीक है, वैल्यूज, लोगों की वैल्यूज डेमोक्रेटिक हो रही हैं। तो ये हमारा सेकंड चैलेंज था, और चैलेंज इसीलिए रहा क्योंकि पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस हमने नहीं किया था, क्योंकि पहले के जितने भी रेजीम्स थे वो डेमोक्रेटिक नहीं थे पर से। ठीक है, तो द नेक्स्ट, अब जो थर्ड चैलेंज आ रहा है वो है टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट जस्ट सम सेक्शंस। अब देखो, नेचुरल सी बात है, बेसिकली हम यूनिटी में रहना सीख चुके हैं, अपने डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर दी है। ठीक है, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। अब जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो आएगा ना तीसरा चैलेंज कि वो गवर्नमेंट सबका डेवलपमेंट और वेलबींग इंश्योर करे। ठीक है, नॉट जस्ट सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ पुअर या सिर्फ रिच या सिर्फ मेन या सिर्फ वेल्दी या सिर्फ वुमेन या सिर्फ चिल्ड्रन, ऐसा नहीं होना चाहिए। द गवर्नमेंट, पहले भी हमने पढ़ा, this was part of the agreement that the government will be run for the good of all people. ठीक है, so this was the third challenge, that was to ensure the development and well-being of the entire society and not just some sections. इसी रीजन की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थिंग्स लाइक इक्वालिटी आने लगी। ठीक है, अब इसके लिए एक और चीज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई, दैट वाज द DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई एम सो सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। ओके, काफी वियर्ड बट ऑल राइट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या थे, ये आपके 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। दीज वर द वेलफेयर गोल्स दैट द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुड अचीव। लोगों का वेलफेयर जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के थ्रू होना चाहिए। गवर्नमेंट जब भी हम फॉर्म करते हैं ना, या आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो मैं याद दिला दूं कि गवर्नमेंट का रोल होता है यही कि जितने भी आपके लोग हैं, सिटीजन्स हैं आपकी कंट्री में, उनका वेलफेयर, उनकी भलाई, उनका अच्छा सोचना है। सो दिस इज द गवर्नमेंट्स जॉब। इस चीज के लिए
और हमारा थर्ड चैलेंज भी यही है कि द गवर्नमेंट दैट वी आर गोइंग टू सेट अप दैट हैज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ ऑल द पीपल दैट आर देयर इन द कंट्री। इसी रीजन की वजह से काफ़ी अलग अलग चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी गई, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड थिंग्स लाइक DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, या आप अपने नोट्स में लिख लो या अपने बुक में लिख लो। दीज आर welfare goals that the government must achieve। ठीक है, directive principles of state policy are, just a moment, I'll write this down here, welfare goals that the government must keep in mind while governing। ठीक है, वेलफेयर का क्या मतलब है, सबकी भलाई देखनी है, सबको बेसिक खाना पानी हेल्थ एजुकेशन लिटरेसी मिल रहा है ना, तो दीज आर द बेसिक वेलफेयर गोल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 3 बेसिक चैलेंजेस। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो आपके चैप्टर का नाम है वो आपने समझ लिए हैं। 3 चैलेंजेस क्या है, without looking at your book, try to recall, go back in our discussion and see। सबसे पहला बेसिक इमीडिएट क्या है कि भाई यूनिटी हो जाए, बस एक दूसरे को खाने को ना पड़े, साथ में रहें, शांति से रहें, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करें, बेसिक। ठीक है, इतना अचीव कर लिया। दिस वाज द फर्स्ट गोल, टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ ईच अदर एंड डाइवर्सिटीज ऑफ ईच अदर। नंबर 2 चैलेंज क्या है कि आप सब एक साथ रहना सीख चुके हो, अब एक गवर्नमेंट हो, लेकिन वो गवर्नमेंट कैसी हो, गो बैक टू आवर डिस्कशन, अग्रीमेंट ऑन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट विल रन फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपल। डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रूल्स लिख लेने चाहिए ताकि रूल्स को फॉलो कर सकें आसानी से। और तीसरा गोल, जब गवर्नमेंट सेटअप हो गई है, नाउ कम्स द थर्ड चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग कि क्या ये गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करेगी, कैसे कराएंगे इससे काम। ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा हमने एक्सपीरियंस नहीं किया है, क्योंकि डेमोक्रेसी हम पहली बार अपनी कंट्री में एट सच अ ह्यूज लेवल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हमारा भी फर्स्ट टाइम है। तो इसीलिए पीपल वर वेरी स्केर्ड दैट, सो दैट इज व्हाई दे कंसिडर्ड इट एज अ चैलेंज कि किस तरीके से हम ये कर पाएंगे, हाउ विल द गवर्नमेंट रन फॉर द वेलफेयर एंड गुड ऑफ ऑल पीपल। तो इसके लिए क्या आया, DPSP जैसी चीजें आई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। DPSP इज व्हाट, दीज आर वेलफेयर गोल्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल गवर्निंग। ठीक है, इन बॉक्सेस पे हम धीरे धीरे आएंगे, पहले लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ आवर चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंजेस जैसा कि हमने देखा था कि जो बैकड्रॉप था पार्टीशन का, तो उसको थोड़ा सा हमें ज़्यादा अच्छे से समझना चाहिए, समझना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि क्यों यूनिटी वॉज सच अ बिग चैलेंज एंड फॉर अस, एंड क्यों हम इतना चाह रहे थे कि यूनिटी हो यूनिटी हो यूनिटी हो। तो पहले तो समझते हैं कि पार्टीशन हुआ क्यों, वेयर डिड दिस होल थिंग कम फ्रॉम ऑफ पार्टीशन, द आइडिया ऑफ पार्टीशन, कौन चाहता था कौन नहीं चाहता था, क्या था ये सब। बेसिक लेमैन टर्म्स में अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो पार्टीशन वॉज, पार्ट कर दिया गया, 2 कंट्रीज बना दी गई, इंडिया एंड पाकिस्तान। ये शुरुआत कहाँ से हुई है, ये शुरुआत हुई है फ्रॉम द 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, क्यों 2 नेशन थ्योरी, किसने बनाई, किसकी प्रपोज की गई थी, ये थी मुस्लिम लीग। अब आप ये बात समझो कि हमेशा से इंडिया में मुस्लिम्स हैव बीन अ माइनॉरिटी, सो naturally then Muslim League was, जो Muslim League was the political representation of the Muslims। now the league was very concerned कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को, हमारे रिलीजन के लोगों को ट्रीट करा जाएगा, और वो अपने लोगों को बचाने के चक्कर में दे came up with the 2 nation theory। मीनिंग क्या, 2 nation theory का मतलब था that India consisted of not one but 2 people। ठीक है, इस चीज को आप कहीं पे लिख सकते हो, मार्क कर सकते हो बुक में, so that it is easier for you to
रिकॉल। तो टू नेशन थ्योरी बनाई किसने, किसने प्रपोज करी? दिस वाज मुस्लिम लीग। द मुस्लिम लीग सेड कि इंडिया जो हमारी कंट्री है, इट कंसिस्ट्स ऑफ नॉट वन बट टू पीपल, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम ये दो तरीके के लोग यहाँ पे रहते हैं, विच इज वाई द लीग डिमांडेड कि हमें मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है, सेपरेट स्टेट मिलेगी तो क्या होगा, एक श्योरिटी रहेगी, एक अश्योरेंस रहेगी कि भाई हाँ हमारे रिलीजन के जो लोग हैं उनको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो ठीक ट्रीटमेंट होगा, it will not be substandard treatment. So in order to protect its people, the Muslim League put forth the two nation theory and said that India consists of not one but two people and we demand a separate state, that is Pakistan, for our people. दिस इज अ सेपरेट कंट्री। ठीक है, अब काफ़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इस तरीके की रही हमारे इंडिया में उस टाइम पे, जिस वजह से मुस्लिम लीग को और पे और ये लगने लगा कि भाई पाकिस्तान तो ज़रूरी है, अगर हम यहाँ रहेंगे देन आवर community will not get the kind of representation it deserves. ठीक है, however naturally so will the you know Indian National Congress जो हमारी उस टाइम की majority party थी, it did not like this theory, it considered this theory as irrational. The INC was opposed to this theory. ये तो basic है. This is quite logical. Again, I would say just don't try to memorize things, just try to understand the logic behind each and every proposal that the Muslim League was making and that the Congress was making. तो अब प्रोसेस कैसे पार्टीशन का शुरू हुआ, तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि भाई दो टाइप के लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो डिफरेंट कंट्री तो फॉर्म होगी। तो बट नाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड द प्रोसेस कि कैसे हम पार्टीशन करें, क्या कैसे हम डिसाइड करें कि भाई ये इंडिया हो गया ये पाकिस्तान हो गया। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट बिकॉज दीज वर blood and flesh वाले people that we're talking about. How do you ask suddenly some people to move, अब तुम यहाँ से यहाँ चले जाओ, some people to move कि अब तुम यहाँ से वहाँ चले जाओ. So that was very difficult to decide and to implement as well. And of course there was fears came true, partition हुआ भी बहुत violent तरीके से, and there were a lot of bitter experiences of people. तो खैर ये जब डिसाइड हुआ कि अब पार्टीशन तो होगा ही होगा, सो कैसे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन कैसे किया जाएगा, हाउ टू इम्प्लीमेंट partition was based on the principle of religious majorities. Now if you think logically, तो principle of religious majority का क्या मतलब है? Principle of religious majority means कि there were certain areas in our country जहाँ पे religious majority थी Muslims की. So there were these two areas, एक था west में एक था east में. West में it was Pakistan and east में it was West Bengal. Sorry, the Bengal region. उस time पे तो Bengal region था. So it was decided कि जो principle of religious majorities है वो follow किया जाएगा, meaning that the areas that were full of Muslim majority they would make up the territory of Pakistan और बाकी का हमारा इंडिया बन जाएगा। तो पहले पहले तो ये आइडिया थोड़ा सिंपल लग रहा था कि चलो ठीक है, हाँ मेक सेंस, वहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं तो उसको डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे हिंदू ज़्यादा हैं तो इसे इंडिया डिक्लेयर कर दो। हाउएवर दिस वाज आल्सो वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स ओन वे। क्यों ऐसा हुआ? नंबर वन, पहला इशू ये आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो सिंगल बेल्ट, हमने देख लिया, ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स। यहाँ पे दो बेल्ट्स हैं, ठीक है, एक है हमारा पंजाब, एक है हमारा बंगाल रीजन। सो इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान वुड एसेंशियली भी एक पाकिस्तान यहाँ पे है और एक पाकिस्तान यहाँ पे है। सो यू अंडरस्टैंड हाउ डिसग्रंटल्ड दिस होल प्रोसेस इज। सो सबसे पहला इशू ये आया कि देयर वाज नो सिंगल मुस्लिम मेजॉरिटी बेल्ट, देयर वर टू एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वन वाज इन द वेस्ट एंड वन वाज इन द ईस्ट। तो इसी वजह से हमारा बना वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस वाज थोड़ा सा
प्रॉब्लमैटिक कि कैसे इनको कनेक्ट करेंगे हम. सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान. अब मान लिया कि रिलीजियस मेजोरिटी का प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन आप ये भी समझो दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, यहाँ पे थी मुस्लिम मेजोरिटी. इनका लीडर कौन थे? इनके लीडर थे खान अब्दुल गफार खान. नाउ अब इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे आप याद रख सकते हो कि फ्रंटियर गांधी हैं ऑफ कोर्स. He did not want partition, as you must be knowing that Gandhi ji was completely opposed to partition. So Khan Abdul Ghaffar Khan also did not want कि भाई हमें नहीं ऐसे ये करना है. So he was opposed to getting mixed with Pakistan. He did not, North Western Frontier Province को वो नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ mix हो. So this was the second issue at that point of time. Partition का first है, there was no single belt of Muslim majority areas. Second issue उस टाइम का ये है that not all Muslim majority areas wanted to be a part of Pakistan. ठीक है. और यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं खान अब्दुल गफार खान के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का. अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर योर MCQs इज कि फ्रंटियर गांधी किसका दूसरा नाम था, या खान अब्दुल गफार खान को क्या नाम से भी बुलाया जाता था. सो दिस इज फ्रंटियर गांधी. ठीक है. एंड कहाँ के लीडर थे ये भी आपका सवाल आ सकता है. सो ही वॉज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस. नाउ थर्ड प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन क्या आया? थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज जो थे, बंगाल और पंजाब, ठीक है आप कह रहे हो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, बट these areas also had very large non-Muslim populations as well. यहाँ पे भी काफी सारे हिंदूज बसते थे, रहते थे. अब उनका क्या करोगे आप? हाउ कैन यू आस्क उनको कि भाई आप उठ के चले जाओ यहाँ से? दे हैव बीन स्टेइंग देयर सिंस सो लॉन्ग. इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू नाउ आस्क दोज नॉन मुस्लिम्स, जो काफी कंसिडरेबल नंबर में थे, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो दीज आर द थ्री मेन प्रॉब्लम्स related to partition. Number one was that there was no single belt. टू एरियाज थे, एक वेस्ट पाकिस्तान बनता, एक ईस्ट पाकिस्तान बनता. सेकेंड वॉज दैट नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर गांधी, अब्दुल गफार खान. नंबर थ्री हमारा इशू क्या आ रहा है? दैट देयर वाज द इशू ऑफ नॉन मुस्लिम्स. ठीक है, नॉन मुस्लिम्स भी काफी सारे थे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में. हाउ कैन यू आस्क देम टू लीव देयर home and go somewhere else? That is very complicated. Now fourth problem of the partition was कि जितनी भी minorities थी दोनों sides of the borders पे, चलो ठीक है partition हो गया, move करने लगे लोग, लेकिन अब जो minorities रह गई दोनों साइडों पे, हिंदूज जो पाकिस्तान में रह गए या मुस्लिम्स जो इंडिया में रह गए, वो भी काफी सारे थे. Now उनको they were now undesirable aliens in their own land. They were easy targets of attack. People started to attack them. किसी को भी अगर अपना गुस्सा शो करना था towards the other community, so they would attack the minorities. And this was a major issue on humanitarian grounds. This was the problem of minorities on both sides who became easy targets of attack. Women were raped, children were killed, men were killed, houses were looted. मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, माइनॉरिटीज को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता था दोनों साइड्स पे, एंड दिस बिकेम अ ह्यूज प्रॉब्लम. कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे पार्टीशन के? नेचुरली नाउ हमने as we have all seen in popular media, we've read in several books कि partition के जो consequences थे, they were very bloody. In the sense, there were a lot of people. So I have just summarized this whole consequence wala part here. You can just take a screenshot of this or write it down somewhere if you want. That mainly killings रही हैं,
रिलीजन के नाम में, ठीक है। दोनों साइड्स पे कम्युनल जोन यानी एक कम्युनिटी ने अपना जोन बना लिया, तो दोनों साइड्स पे कम्युनल जोन्स बन गए हैं जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी जाने से डरती है। माइनॉरिटीज डर के दे फ्लेड, दे एस्केप्ड दूसरी कंट्री में, एज इन जो हिंदूज थे पाकिस्तान के और जो मुस्लिम थे इंडिया के, दे फ्लेड टू द अदर कंट्री, और वहां जाकर के रेफ्यूजी कैंप्स में रहने लगे। रेफ्यूजी कैंप क्या होता है? रेफ्यूजीज होते हैं जो लोग दूसरी कंट्री से भाग के आए होते हैं वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। तो रेफ्यूजी कैंप्स काफ़ी सारे बनाए गए थे टेम्पररी, और लोग एक एक साल 2-2 साल उन रेफ्यूजी कैंप्स में रहे जहाँ पे कंडीशंस वर नॉट वेरी हाइजीनिक एंड वेरी हेल्दी। तो उसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, पुलिस या आप कहो जो कलेक्टर्स, इवन दे कुड नॉट हेल्प द माइनॉरिटीज इन दिस सिचुएशन। वो भी बहुत फंसे हुए फील करते थे। अगेन दिस प्रोसेस वाज वेरी वायलेंट। बहुत सारे चोरी के केसेस, रेप के केसेस, किडनैपिंग्स, some people were forced to convert to the other religion, some women were forced to marry men from the other religion, some men were forced to kill their own mothers, their own wives in order to protect अपने फैमिली का ऑनर। वो अपने ही फैमिली मेंबर्स को मार दे रहे थे। और इवन छोटी से छोटी चीज, इवन टेबल्स एंड पेन्स तक की डिवीजन हुई। सो ऑथर्स वुड जस्ट गो ऑन टू कॉल दिस अ डिवीजन ऑफ हार्ट्स। ना कि सिर्फ फाइनेंशियल डिवीजन था ये, बट इट वाज फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन रहा। माने क्या? हमारे जो लैंड है उसको डिवाइड कर दिया गया। फिनेंसेस माने क्या? पैसे, उनको डिवाइड कर दिया गया। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको डिवाइड कर दिया गया। जितने भी अपैरेटस हैं यानी टेबल चेयर पेन तक डिवाइड कर दिए गए। सो this was a very 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 difficult situation, very very difficult 2.5 years for people who were stuck here. So you can just give an overall reading to this particular page, but I have summarized this into this particular small notes का thing, and you can just take a screenshot of this or you can write this down. ठीक है, let's move forward. Just a moment. ऑन एन एवरेज अगर आपको नंबर्स का ध्यान रखना है तो नंबर में अबाउट 5 to 10 lakh people were injured and 80 lakh people were forced to migrate टोटल इधर से उधर। सो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई डोंट थिंक एग्जैक्ट नंबर्स पूछेंगे आपको एग्जाम में, बट इफ यू जस्ट वांट फॉर योर रेफरेंस यू कैन रेफर टू दिस। ये तो हमने पहले देख ही लिया है कि माइनॉरिटीज स्टिल काफ़ी सारी थी दोनों ही साइड्स पे। यहाँ पे जो हमने 4 प्रॉब्लम्स पढ़े थे पार्टीशन के, यहाँ पे भी हमने देखा था देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, दैट द माइनॉरिटी पॉपुलेशन दोनों ही रिलीजन्स के दोनों साइड पे वर स्टक एंड दे डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स हैं, लैंड कैसे डिवाइड करेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स है, पैसा कैसे डिवाइड करेंगे। उसके अलावा माइनॉरिटीज़ का भी कंसर्न है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ को किस तरीके से आप सेटल करोगे, कहाँ उनको घर दोगे, अपना घर वो छोड़ के आए, अपने रिसोर्सेज वो छोड़ के आए, उनके अपनी जॉब्स छोड़ के आए, यहाँ उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था, ठीक है। और उसके अलावा अब क्योंकि हमने पहले पाकिस्तान का तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट यहाँ पे अगेन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर note point that I have written. This is again a summary of what you will be finding in this paragraph कि जितनी भी confusion थी कि minorities का क्या करना है, कैसे होगा, consensus इंडिया का एक ही था that earlier also जो हमारे 3 major challenges थे उसमें सबसे पहला challenge क्या था? To be accommodative of the diversity. So India was very clear. We cannot say anything about Pakistan, but India was very clear. There was a consensus, एक agreement था कि सबको equally treat किया जाएगा, जो भी हमारे country में रह रहे हैं, आए हैं, उनको equally treat किया जाएगा irrespective of their religion, even if they belong to the minority community, even if they are not Hindu, even if they have migrated here,
from Pakistan, they will be treated equally. उनको religion won't be a test for citizenship. ठीक है, even if आप मुसलमान हो, आप यहाँ रह रहे हो, आप यहाँ के citizen हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदू होना ज़रूरी है to be a citizen. A secular nation will be the norm. Secular माने क्या? Secularism मतलब हर religion को equal respect देना. ठीक है, all religions will be equally respected in our country. This was constitutionalized, मतलब हमारी constitution में से लिख दिया गया. अब बहुत साफ सी बात है, बहुत सिंपल, इसको हमेशा याद रखना. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिख दिया है ना, वो तो फॉलो होगा लाइक पत्थर की लकीर. इसीलिए कुछ भी चीज़ अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री में फॉलो हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना बहुत ज़रूरी है. सो सेक्युलरिज्म was going to be the norm, and religion was not going to be the test for citizenship, was constitutionalized. Also, one more thing that you can just, one small fact if you want to take note of, Muslims उस time पे 12% population थे of the total population. तो minority तो थे, but 12% was still a huge number. तो इनको ठीक से treat करना हमारी responsibility थी on humanitarian grounds, and that is what we made sure, that people are given proper treatment. Okay, just a moment. One small quote right here is, tomorrow we shall be free from slavery of the British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as mourning. ये बोला किसने है, ये आपसे पूछा जा सकता है. This was Mahatma Gandhi. Always remember Mahatma Gandhi की ideology. As a political leader, he always wanted India to be free. He always wanted that the Britishers should leave, India should be self-governed, India अपने आप को अपने आप govern करे, लेकिन he never wanted partition. तो कहीं पे भी अगर आप ऐसा नहीं भी याद कर सकते हो कि ये किसने कहा था या जो भी, तो just think logically कि rejoice as well as mourn करेंगे पार्टीशन पे, ये सिर्फ और सिर्फ गांधी जी बोल सकते हैं, because he was really hurt कि पार्टीशन हो रहा है. ठीक है, तो ये आप याद अगर होता है तो कर लो, नहीं होता है तो इट इज फाइन, जस्ट थिंक लॉजिकली हु विल से इट. ठीक है, तो सी दिस इज व्हाई आई एम हियर, टू हेल्प यू थिंक लॉजिकली, टू हेल्प यू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, मेक सेंस ऑफ द जनरल आइडियोलॉजीज. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप रट्टा मारो, सो आई एम जस्ट हियर टू हेल्प यू आउट टू थिंक लॉजिकली. ठीक है, ओके, सो ओके, तो पहला हमने समझ लिया है पार्टीशन का पूरा प्रोसेस. अब हम इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, दो टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं, तो अभी बेसिकली व्हाट माय टीचिंग स्टाइल इज गोइंग टू बी दैट आई विल बी कवरिंग द चैप्टर इन सच अ वे कि आपको लॉजिकली समझ आ जाए पूरा. ठीक है, आई विल कवर ऑल पार्ट्स, डू नॉट बी वरीड एट ऑल, बट आई विल ऑल्सो कम अप with another video in the end with the notes for this chapter. ठीक है, जो भी important notes होंगे, important boxes होंगे, important facts होंगे जो आपको याद होने ही होने चाहिए, I will be coming up with a video for that. Please stay tuned. Probably tomorrow I'll be putting up that video. Tomorrow or day after tomorrow. So उसकी आप टेंशन मत लेना कि हमें नोट्स खुद बनाने हैं या हमें कुछ लिखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है. I am going to be putting up a Word document. We will be discussing the notes for this chapter. You can just download that for free and keep it in front of you. I hope कि आपको चैप्टर समझ आ रहा है अभी तक. So when I'll be putting in the notes, at that point what you can do is you can add certain points if you feel ki something is missing. So you can add certain points right there. Apart from that, there'll be one more video coming in for this particular chapter where we will be covering the integration of princely states and the reorganization of states. ठीक है, these are again two important topics. princely states को किस तरीके से integrate किया गया country में, वो देखेंगे, और किस तरीके से states को reorganize किया गया वो भी देखेंगे. And I will see you in the next video. I hope whatever we did today you understood that,
एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग दैट यू वांट कि हमें और डिस्कस करना है या हमें और क्लैरिटी चाहिए या जो भी आपका फीडबैक रहेगा, प्लीज़ एज आई सेड, put it in the comment section below. If you want the videos to be shorter, if you want the videos to be longer, if you want me to use Hindi more, if you want me to use English more, जो भी है, just put it in the comments below so that I can uh, change my style from the next videos. ठीक है? All right, then bye bye. Happy studying, and I'll see you in the next video. If you haven't subscribed to the channel, please do so. Do like the video, do share it with your classmates, do share it with people who you think might need this, and that would be a lot of help from you. So, bye bye, and I'll see you in the next video.